اس موقف پر میرا خیال ہے جو تمام اطراف کا بغور جائزہ لے کر بنا، یہ مسائل تمام فریقوں نے کسی ایک نقطے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے چٹان ثابت ہونے کے لیے نہیں کیے۔ حزب اسلامی کا انتخابات پر شدید اصرار ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں، جبکہ خالص اور سیاف دونوں انتخابات کے انعقاد کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ اپنے اس بیان کی یونس خالص یہ تعویل دیتے ہیں کہ انتخابات کا یہ عمل دراصل اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بغیر بیعت کے نہیں ہے، یعنی اہل حل و عقد کی ایک مجلس بنائی جائے اور وہ مجلس مختار ہے کہ کسے حکومت کا سربراہ بنایا جائے۔ اگر ہم پوچھیں کہ اہل حل و عقد کو کون نامزد کرے، موضوع کی نسبت سے ایک نشاندہی بھی کرتا چلوں کہ انتخابات کا انعقاد ایک لحاظ سے منفی پہلو بھی رکھتا ہے کہ عملی طور پر پہلے 6 ماہ میں اس ہدف کو پورا کرنا مشکل ہوگا۔ میرے قول کی اس سے تائید بھی ہو جاتی ہے کہ نجیب کی حکومت کے زوال اور کمیونسٹوں کے خروج کو تقریباً 14 ماہ ہو چکے، مگر ملک میں امن و استقرار تاحال قائم نہیں ہوا۔ ایسے حالات میں کیسے انتخابات منعقد کرائے جا سکتے ہیں؟ یہاں تک جمال خاشقی کا حکمت یار سے صحافتی انٹرویو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں نے جو حکمت یار کی طبیعت کو پرکھا تو دیکھا کہ وہ ہر دم جستجو میں ہیں، لیکن سکوت زیادہ اختیار کرتے ہیں۔ چہرے پر طمانینت جھلکتی ہے، اور یہ معاملہ باہر کی دنیا سے بالکل الٹ ہے، جہاں ہر چیز اس کے ارد گرد کی دنیا سے مختلف نظر آئی ہے۔ بڑی طمانینت کے بعد وہ ہمیں بتانے لگے کہ حزب کے مجاہدین نے کابل کو شمال، جنوب اور مشرق اور ایسے اہم جہتوں سے گھیرا ہوا ہے۔ جنوب میں صوبہ لوگر ہے، جہاں حزب کی اہم چوکیاں موجود ہیں، اور وہ وسط کابل سے 15 کلومیٹر دور ہے۔ شمال میں حزب مجاہدین نے کابل کو 2 طرف سے گھیر رکھا ہے اور وہاں راستوں کو پرامن بنا دیا ہے۔ ایک مارکا گردیز لوگر پر ملیشیا اور حزب کے درمیان ہوا، جہاں مجاہدین نے ملیشیا کے 80 افراد قتل کر دیے، جو باقی بچے وہ کابل کی جانب بھاگ نکلے۔ اس واقعے کی میرے سامنے اطلاع آئی جب میرا وہاں قیام تھا، اور بعد میں پتا چلا کہ حکمت یار نے جو واقعے کی تفصیلات بتائی تھیں وہ حرف بحرف صحیح تھیں۔ حزب نے کابل کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، جبکہ حزب کے علاوہ دیگر تنظیمیں کابل میں داخلے کے لیے بے چین نظر آتی ہیں۔ مسعود کی فوجیں شمال کی جانب چاریکار کے راستے پر موجود تھیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قائدین کا ہدف ایک ہی ہے کہ وہ کابل میں داخل ہوں، مگر اپنی جہادی ٹیکنیک میں مختلف ہیں۔ حزب کابل پر تمام جانب سے گھیرا کر رہی ہے اور مسعود صرف ایک جانب ہے۔ جب حزب کو پتہ چلا کہ مسعود چاریکار کے راستے سے کابل میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حزب نے اس کا راستہ بند کر دیا تاکہ مسعود اندر نہ جا سکے۔ آخر وہ مجبور ہو کر ملیشیا اور شورا نظار کی فوجوں کو بذریعہ ہیلی کاپٹر چاریکار اور مزار شریف کے راستے سے کابل ایئرپورٹ پر پہنچ سکا۔ ملیشیا کو بذریعہ ہیلی کاپٹر پہنچانے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسعود کابل میں داخلے کے لیے کس قدر بے چین ہے۔ عین اس وقت جب کابل میں داخلے کی دوڑ شروع ہوئی تھی، تب مسعود پشاور میں موجود افغان قائدین کو باہمی اتفاق کی ترغیب دے رہا تھا اور مسائلین پر اصرار کر رہا تھا کہ حکمت یار کو کابل میں طاقت استعمال کرنے سے روکیں۔ اس سے وہ بتانا چاہتا تھا کہ کابل اس کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ اس دن سورج غروب ہونے سے قبل ہم حزب کی کابل کے گرد پوزیشن دیکھنا چاہتے تھے۔ جب ہم نے اس سے حکمت یار کی بابت پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کا نائب سربراہ ہے۔ وہ کل رات 12 بجے کے بعد آیا تھا اور حکمت یار سے مذاکرات کرتا رہا جو فجر تک جاری رہے۔ پھر دوسرے دن ظہر سے عصر تک مذاکرات کرتا رہا۔ اس وقت 4:30 بجے تھے جب ہم ذیلی سڑک سے ہوتے ہوئے اس شاہراہ پر آ گئے جو گردیز کو کابل سے ملاتی ہے۔ ہمارا یہ کارواں 3 گاڑیوں پر مشتمل تھا۔ ایک گاڑی میں خالد، میں اور بعض باڈی گارڈ سوار ہوئے۔ جمال خاشقی مرکز میں رہے کیونکہ انہوں نے رپورٹ اور خط اخبار کو لکھنا تھا، جبکہ پاکستانی مہمان دوسری گاڑی میں سوار ہوا۔ ساتھ کچھ باڈی گارڈ تھے۔ تیسری گاڑی پر سامان لادا گیا اور کچھ باڈی گارڈز اس پر سوار ہوئے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ہم شاہراہ پر آ چکے تھے۔ کیا فرحت بخش لمحہ تھا، ایسی فرحت جو غیر معمولی تھی۔ اپنے مجاہدین کو خط اول پر ملنے کے لیے ایک ساتھ میں میرے ذہن میں وہ وقت سامنے آ گیا جب یہاں کمیونسٹوں کا قبضہ تھا۔ اب ہم دوربینوں سے یہ جگہ دیکھتے تھے اور آج اس پر بذات خود چل رہے ہیں۔ ہمارا یہ دورہ عصر تا مغرب رہا، جس کے دوران ہم نے حزب کے انتظامات دیکھے، مجاہدین سے ملے اور بعض بدویوں کو بھی دیکھا۔ حزب بالکل مستعد پوزیشنیں لیے نظر آئی۔
टैंक तैयार खड़े थे। मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर्स भी किसी हुक्म के मुंतजिर नजर आ रहे थे। भारी असलहा तो एक तरफ था, वहां हल्के हथियारों से पूरा इलाका अटा पड़ा था। वापसी पर मैंने हिकमत यार से कदरे झिझकते हुए इस्तफसार किया कि हम किस तरह मुजाहिदीन को कमजोर देख सकते हैं, जबकि मिसाइलों का रुख काबुल की जानिब है, मगर किसी का कोई राबिता ही नहीं है। मेरी इस तवज्जो पर हिकमत यार ने फौरन पैगामात अरसाल किए कि ये सूरत हाल फौरी तौर पर क़यादत तक पहुंचाई जाए। मुझे खौफ मुजाहिदीन की हालत से हो रहा था कि मेरी मालूमात के मुताबिक काबुल का जुनूब लोगर यानी लोगर की जानिब का जो इलाका है इंतहाई खतरनाक इलाकों में शुमार होता है, जबकि इस इलाके में हिज़्ब और मलेशिया के माबैन मुसलसल जंगें रही हैं। और अगर हम मुलाहिजा करें तो मालूम होगा कि इस इलाके पर हिज़्ब का कंट्रोल आसान नहीं था, क्योंकि अब्दुल रशीद दोस्तम की उज़्बक मलेशिया का मरकज़ यहाँ था। यही इलाका तवील अरसा हिज़्ब की कमज़ोरी का बायस बना रहा। इस दौरे में मेरा आखिरी मुशाहिदा ये था कि खत्ते अव्वल से मोर्चे पीछे आ गए थे, जिसके ज़रिए मुजाहिदीन दुश्मन की नकलो हरकत को निशाना बनाते थे। नमाज मगरिब के बाद हम मरकज़ वापस लौट आए। मुजाहिदीन नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद रात का खाना खा लेते हैं, जैसे ज़ोहर का खाना जल्द खा लेते हैं। इशा के बाद हमने नशिस्त की, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नायब सरबरा भी शरीक था। इस नशिस्त में वो मसाइल और उमूर ज़ेरे बहस आते हैं जिन्हें बाज़ औक़ात हिज़्ब की क़यादत अपनाती है, जिनकी दूसरी अहज़ाब और तंजीमों के यहाँ रिवायत नहीं है। उसी रात मुझे पता चला जनरल मोहम्मद रफ़ी नायब वज़ीर ख़ारिजा हिकमत यार से मुलाकात के लिए बुध की रात आया था, यानी हमारे पहुंचने से एक दिन कबल हेलीकॉप्टर में आया और हिकमत यार से 3 घंटे की तवील मुलाकात की। इस मुलाकात से बज़ाहिर मालूम होता था कि हिज़्ब से बाहमी कोई इत्तेफाक हुआ तो है, ताहम किसी को मुत्तला नहीं किया गया। इस मुलाकात में एक इत्तेफाक पर पहुंचने की कोशिश भी सामने आई कि मुजाहिदीन के काबुल में दाखिले पर कोई कत्लो गारत न की जाए, जो हिकमत की ख्वाहिश थी। हिकमत यार और जनरल रफ़ी की मुलाकात से बाज़ वक़ाए से यह भी पता चलता है कि अफ़गान कम्युनिस्ट पार्टी का खल्क धड़ा जो रफ़ी के ज़ेरे असर है, उसका हिकमत यार से इत्तेफाक इस बात पर भी हुआ है कि हिज़्ब खल्क पार्टी के मद्दे मुकाबिल पार्टी परचम का रास्ता रोक दे, जो मसूद से जा मिली थी। बाद में परचम पार्टी में बनी अजीमी के साथ साथ जनरल मोमिन, अब्दुल रशीद दोस्तम, आसिफ दिलावर, बाबा जान और वजीर खारजा अब्दुल वकील अहमद शाह मसूद के साथ शामिल हो गए, ताकि हिकमत यार से जनरल रफ़ी का तसादुम करवाया गया है। बरोज़ बुध 19 शव्वाल 2 अप्रैल को रफ़ी ने हिकमत यार से अपील की कि काबुल पर हमला न किया जाए, बल्कि मुजाहिदीन की तरफ से मुश्तरका हुकूमत कायम की जाए जो काबुल में इक़्तिदार संभाले। मगर हिकमत यार ने रफ़ी पर शर्त लगा दी कि काबुल से मलेशिया को निकाला जाए और काबुल मुजाहिदीन की मजलिस शूरा के हवाले किया जाए। लेकिन काबुल के हालात रफ़ी को ये मौका नहीं दे रहे थे कि हिकमत यार की शर्त पूरी कर सके, क्योंकि अस्करी कुव्वत उसके बल पर परचम पार्टी और मसूद खड़े हुए हैं। काबुल से मलेशिया को वो निकलने नहीं देंगे। इस मुश्किल शर्त के साथ रफ़ी काबुल लौटा और साथ ही हिकमत यार की तंबीह भी कि 23 शव्वाल मवाफ़िक 26 अप्रैल बरोज़ इतवार अगर मलेशिया को काबुल से ना निकाला गया तो काबुल पर हमला कर दिया जाएगा। रफ़ी की बदबख्ती ये कि काबुल हुकूमत में उसकी पार्टी की हिफाजत की कोई जमानत अब नहीं थी, सिवाय काबुल को हिज़्ब इस्लामी के हवाले कर देने के। इस मुलाकात के बारे जो कुछ कहा गया, इसमें यह भी कि रफ़ी काबुल वापसी पर रफ़ीक अफ़गान पर पाकिस्तानी सहाफ़ी है, उसको अपने साथ जहाज़ में ले गया। इसकी जिम्मेदारी थी कि वो काबुल में हिज़्ब इस्लामी के लिए काम का जायज़ा ले। ये सहाफ़ी जब वापस काबुल आया तो काबुल की तमाम सूरत हाल की असल तस्वीर लेकर आया। इसके साथ उसने बताया कि मुजाहिदीन के लिए काबुल के अवाम अपने दिल फर्शे राह किए हुए हैं और काबुल तस्लीम होने के लिए तैयार है, जिसके साथ हुकूमती वज़रा, सिविल ऑफिसर्स और फौजी क़यादत भी है। मजीद बरा के काबुल पर हमले में कोई रुकावट सामने आने वाली नहीं है। मैंने उस सहाफ़ी से ऐसी सूरत हाल का पता चलाने का जरिया पूछा तो उसने बताया कि ऑफिसर मेरे साथ पूरे काबुल में रहा, जो मुख्तलिफ फौजी चौकियों से पास कराकर मुजाहिदीन तक वापस ले आया। जब ये ऑफिसर मुजाहिदीन के पास पहुंचा तो जवाबन उसे गले लगाया गया। उसे उसके कम्युनिस्ट होने का एहसास नहीं दिलाया गया। मेरा ज्यादा गुमान ये था कि ये हिज़्ब का आदमी था जो फौज में दाखिल किया गया था, या वो फौज के इस गिरोह के साथ था जो हिज़्ब की काबुल में है। इस बात की तस्दीक हो गई कि हिज़्ब की फौज काबुल में 3000 के करीब मौजूद है। उसी रात मुझे पता चला कि हिकमत यार काबुल के तस्लीम होने को महज एक रुख से देखते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि मुजाहिदीन काबुल में फातेह बनकर दाखिल हों, यानी कलमे वाले झंडे बुलंद किए हों। मुजाहिदीन अपना असलहा लहराते हुए काबुल में दाखिल हों, खा कोई मुजाहमत हो या ना हो।
इस नशिस्त में हिकमत यार ने कहा कि पेशावर में जारी मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। बसबब इख्तलाफ मुजाहिदीन में पेशावर में मुज़ाकरात से भागा नहीं हूं, बल्कि अपने नायब कुतुबुद्दीन हिलाल को सियासी उमूर का रईस बनाकर आता हूं, क्योंकि यहाँ के हालात को मेरी ज़रूरत थी। ये हमारी आज की नशिस्त थी। इसके बाद इसी मरकज़ में हमने रात गुजारी। आंधी, छठा दिन, जुमा, 21 शव्वाल 1412 हिजरी, 24 अप्रैल 1992 ईस्वी। सुबह उठकर नमाज फजर अदा की। अफगान आदतन फजर जरा ताखीर से पढ़ते हैं, यानी रोशनी के फैलते ही, जो मजहब इमाम अबू हनीफा के मुताबिक है। अलबत्ता हिकमत यार नमाज फजर जरा पहले पढ़ाते हैं, क्योंकि वो नमाज फजर तवील करते जो पौन घंटे की होती है, इससे कम नहीं। आज के दिन मैंने इरादा किया कि जिस गरज के लिए मैं हिकमत यार के पास आया हूँ उसकी दूसरी नशस्त उनके साथ की जाए, ताकि मेरा हदफ पूरा हो जाए, मगर सारे दिन की मसरूफियात की वजह से मौका न मिल सका। ये मसरूफियात यके बाद दीगरे बढ़ती रही। नाश्ते के फौरन बाद हिकमत यार और उस्ताद फरीद के माबैन मुलाकात हुई। उस्ताद फरीद और हैं और हाजी फरीद और हैं। अव्वल ज़िक्र हिज़्ब के मुजाहिदीन के गिरोह के कमांडर हैं और दूसरी हिज़्ब इस्लामी पेशावर के दफ्तर के जिम्मेदार हैं। ये मुलाकात इस सबब से अहम थी कि उस्ताद फरीद ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हिज़्ब काबुल पर हमला नहीं करेगी। इंजीनियर हिकमत यार इस बात पर उनका मुआखजा कर रहे थे कि ये बयान हिज़्ब की पॉलिसी के खिलाफ है। लोगों में इसकी इशाअत मबनी पर हकीकत नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त तो हिज़्ब के तमाम ग्रुप्स काबुल पर हमले के लिए तैयार खड़े हैं। अलबत्ता उस्ताद फरीद ने ऐसे किसी बयान की तरदीद की जो नशर हुआ। BBC ने उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। इसी तरह उन्होंने हिकमत यार को बताया कि हम तो खुद मुजाहिदीन के साथ काबुल की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं और सिर्फ काबुल से 2 किलोमीटर के फासले पर हैं। हम अगले हुक्म के लिए हर वक्त तैयार हैं। इस पर हिकमत यार ने उन्हें बताया कि आज मसूद से मेरी बातचीत होगी, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। उस दिन मुख्तलिफ अहम कॉलों का तांता बंधा रहा। एक कॉल काजी हुसैन अहमद की भी आई थी। काजी हुसैन अहमद साहिब के अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद तमाम जिहादी तंजीमों से बड़े कदीम ताल्लुकात हैं, खुसूसन हिज़्ब इस्लामी से। ये ताल्लुकात अफगानिस्तान में इस्लामी तहरीक के इब्तदाई दौर से ही उस्तवार हो गए थे। ये मलिक ज़ाहिर शाह का दौर था। काजी हुसैन अहमद उस वक्त जमात इस्लामी पेशावर के जिम्मेदार थे, जो अफगानिस्तान से करीब तरीन शहर है। इसी तरह वो वक्तन फवक्तन काबुल में लेक्चर्स देने आते और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तहरीक इस्लामी में बाहम राबता बढ़ाते। इस दौरान हिकमत यार का काजी हुसैन अहमद से ताल्लुकात और गहरे हो गए। हिकमत यार हिजरत करके पेशावर उस वक्त आए जब रूसी फौजें काबिज हो चुकी थीं, और यहाँ से फिर मुजाहिदीन के गिरोह दर गिरोह अफगानिस्तान में दाखिल होने लगे, जो सोवियत यूनियन के खिलाफ बरसरे पैकार होते। तब अफगान तंजीमों ने पेशावर को अपना सियासी मरकज बनाया। इस मजमूई सूरत हाल से पेशावर में हिकमत यार और जमात इस्लामी से खुसूसन काजी हुसैन अहमद से ज़ाती ताल्लुकात और गहरे हो गए। यही ताल्लुकात आज दीगर तंजीमों की आंखों में खटक रहे हैं। जब भी जमात इस्लामी हिज़्ब इस्लामी के किसी मौक़िफ़ की हिमायत करती है या इसकी किसी राय पर साथ करती है, काजी हुसैन अहमद ने हिकमत यार को मुत्तला किया कि सऊदी अरब से 2 गैर जानिबदार वफूद आए हैं। एक में शेख मोहम्मद महमूद अस्सवाफ, डॉक्टर मोहम्मद उमर जुबैर और डॉक्टर मनक़ज़ सवाफ हैं, जबकि दूसरे में जो रियाज से आया है शेख सालेह अस्सहबानी शामिल हैं। इस पर मजीद काजी हुसैन अहमद ने बताया कि पाकिस्तान बाज़ शराइत से दस्तबरदार हो रहा है, जिस पर उसने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था, और अब वो हिज़्ब के मौक़िफ़ को समझने लगा है। इस रुजू पर ज़ाहिरन ज़्यादा हाथ उस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के नायब सदर का है, जो जुमेरात को हिकमत यार से मिला था और हिज़्ब के अगले मोर्चों का जायजा लेकर गया था। काजी हुसैन अहमद ने गुफ्तगू के दौरान हिकमत यार से चाहा कि वो अपने इस मौक़िफ़ पर नज़रसानी करके ताख़ीर करें जो काबुल पर हमले का पेश किया था। इस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये था कि काजी साहिब काबुल में जमा अफगान कायदीन को एक बार मौका देना चाहते थे ताकि वो किसी सियासी नतीजे पर पहुंच जाएं। हिकमत यार ने उस वक्त माजरत की कि ये फैसला हिज़्ब की शूरा ने किया था, इसको बदल देने का इख्तियार हिज़्ब की शूरा को ही है, और शूरा को फारी तौर पर तलब करके इजलास करना इस वक्त बहुत मुश्किल है। इसी गुफ्तगू से मुझे ये भी पता चला कि हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि अफगान कायदीन का इत्तेफाक पेशावर में होता कि पाकिस्तान की कोशिशें भी इस इत्तेफाक राय में शामिल हों जो जिहाद अफगानिस्तान में रही हैं। इसी दौरान ये भी पता चला कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने पेशावर में मौजूद कायदीन पर दबाव डाला कि अगर आज जुमे तक कायदीन किसी इत्तेफाक राय पर नहीं पहुंचते
तो खदशा है कि वो बड़ी पार्टियां काबुल में दाखिले के लिए चढ़ दौड़ेंगी और पाकिस्तान जो मेज़बान है इसका किरदार इस सिलसिले में मादूम हो जाएगा। इसी गुफ्तगू के दौरान हिकमत यार काजी हुसैन अहमद को बाज़ अहम उमूर पर और मवाक़िफ़ की तफसीलात बताते रहे। हिकमत यार ने जो कुछ कहा इसमें यह भी था कि ईरान का किरदार इस सिलसिले में अफगानिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। ईरान चाहता है कि इसका असर और रसूख कबायली सिस्टम और शिया तंजीमों के ज़रिए नफूज़ पजीर हो जो अफगानिस्तान के वस्त और मगरिब में मौजूद हैं, यानी ईरानी हुदूद के साथ या बसूरत दीगर दोस्तम की मलेशिया, मसूद और हिज़्ब वहदत के बाहमी इत्तेहाद से ऐसा ग्रुप बना दिया जाए जो अफगानिस्तान में ईरान के असर और रसूख को कायम कर सके। इससे मुजाहिदीन किसी नतीजे पर पहुंचने के बावजूद नहीं पहुंच सके। मजीद हिकमत यार ने कहा कि दो बड़ी तंजीमें बाहमी इत्तेफाक पैदा कर लें कि दोनों अफगानिस्तान में अददी और अस्करी और असलहे के लिहाज से बड़ी हैं, लिहाजा इनका इत्तेफाक जब हो जाएगा तो दीगर छोटी तंजीमों को भी ये तस्लीम करना पड़ेगा और उनका मशवरा और राय फिर सानवी हैसियत रखेंगे। मुल्क की सदारत रब्बानी लें और वजारत उज़्मा हिज़्ब को दी जाए। इस नुक्ते पर मेरे जहन में सवाल उठा कि हिकमत यार रब्बानी को क्यों सदर बनाना चाहते हैं और खुद क्यों नहीं बनना चाहते। घड़ियां और वाक़यात। 7वां रोज 22 शव्वाल 1412 हिजरी 25 अप्रैल 1992 ईस्वी। आज के दिन की इब्तदा गुज़िश्ता दिनों से कदरे मुख्तलिफ तौर पर हुई। फजर के वक्त शदीद सर्दी थी, इस पर मुस्तदाद ये कि गर्म पानी बराए वजू भी नदारत। ये सर्दी लोगर की सर्दी थी और हम सरखाना मरकज में ठहरे हुए थे। मामूल के मुताबिक हिकमत यार ने नमाज फजर पढ़ाई, फातिहा खत्म की तो सूरतुल फतह शुरू कर दी। मैं समझ गया कि आज का दिन जिहाद की तारीख में बहुत अहम होगा। इससे मैं उनकी तरफ से बशारत या खुशखबरी का इशारा बखूबी समझ गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह मक्का की खुशखबरी सुनाई गई थी, नमाज फजर के फौरन बाद वायरलेस ऑन कर दिया गया और पे दर पे कॉलें अंदर के वाक़यात और सूरत हाल बताने लगी। सुबह 7 बजे इत्तला पहुंची कि मुजाहिदीन हिज़्ब ने एक साबुन की फैक्ट्री फतह कर ली है। ये फैक्ट्री बजाते खुद इतनी अहम नहीं है, मगर ये काबुल एयरपोर्ट का करीबी इलाका है जिसे बहुत अहम तस्वुर किया जाता है, क्योंकि काबुल के करीबी इलाके में शिमाली इलाका जात जिसमें शहर और एयरपोर्ट है ये मौजूद हैं। 9 बजे की इत्तला थी कि मुजाहिदीन ने काबुल से जलालाबाद जाने वाली चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। जब भी कोई खबर आती हिकमत यार जरूरी हिदायत देते ताकि पिछली सफ़ों के मुजाहिदीन मुस्तैद हो जाएं। इसके बाद हिकमत यार ने हर लम्हे बाद अपने 2 कमांडर अबू बकर और अमानुल्लाह को अहम हिदायत दी। कमांडर अबू बकर लश्कर ईसार के इंचार्ज हैं जो हिज़्ब में बड़ी अहमियत रखते हैं। लश्कर ईसार हिज़्ब इस्लामी का सबसे ज्यादा चाको चौबंद और आला तरबियत याफ्ता दस्ता है जिसे खुद उसने तरबियत दी है। लश्कर ईसार की जिम्मेदारी काबुल के जुनूब की थी। जब कुछ देर के लिए उस जानिब से कोई इत्तला आ रही थी तो हिकमत बड़े बेताब हो गए। ये दरअसल वहां की दिगरगू सूरत हाल की वजह से था। 10:15 पर जलालाबाद से खबर आई कि मुजाहिदीन ज़ादखेल पर काबिज हो गए। चुनाचे हिकमत यार ने हिदायत दी कि वो मजीद आगे न बढ़ें। थोड़ी देर बाद जनूबी जानिब से ये इत्तला आनी शुरू हुई कि वो फिलहाल पेशकदमी नहीं कर रहे। आज दरअसल वजीर खारिजा अब्दुल वकील ने हुकूमत की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें ऐलान पेशावर पर अफगान हुकूमत का रद्द अमल पेश करना था, मगर रेडियो BBC ने ऐलान किया कि वजीर खारिजा अब्दुल वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। इस खबर से मुझे यकीन हो गया कि ये सारी वजह इस्लामी फौज की पेशकदमी के सबब है। 10:40 पर पेशावर से वायरलेस पर पैगाम आया कि मुजद्ददी माअबूरी काबीना के 1-2 रोज में काबुल आ जाएंगे। इसके बाद अफगान हुकूमत ने दोबारा किसी रद्द अमल का इंदिया नहीं दिया। इसका मतलब है कि पेशावर में कायदीन हिज़्ब को अस्करी की बजाय सियासी तौर पर पेशकदमी से रोकना चाहते हैं और इस तरीके से हिज़्ब पर दबाव भी डालना चाहते हैं। हकीकतन हिज़्ब को नई तश्कील शुदा काबीना का काबुल में जाकर हुकूमत संभालने पर एतराज़ नहीं है, अलबत्ता इस पर मुजद्ददी की सरबराही पर इख्तलाफ है। चुनाचे हिकमत यार ने अपने नुमाइंदा पेशावर हाजी फरीद को कहा कि वो कायदीन को मुत्तला कर दें कि वो मुजद्ददी की सरबराही तस्लीम नहीं करते, जबकि अफजल ये है कि इस पूरी काबीना को तब्दील करके मैदानी कायदीन यानी फील्ड कमांडर्स को शामिल किया जाए जो काबुल के गिर्द हैं। ये बात ताकीदन हिकमत यार जरूर कहते कि वो मैदानी कायदीन जो काबुल के गिर्द हैं ताकि मसूद को इसमें शुमार न किया जा सके। 10:50 पर ऑपरेटर ने एक और पैगाम सुनाया और वायरलेस हिकमत यार को दे दी और खुद होने वाली गुफ्तगू तहरीर करने लग गया। 11:30 पर सियासी दबाव मुख्तलिफ ग्रुप्स और कायदीन की तरफ से बढ़ना शुरू हुआ।
کہ حکمت یار اپنا پشاور معاہدے پر موقف تبدیل کر لیں، اور جتنی بار بھی رابطہ ہو رہا تھا سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ وہ اپنا موقف بدل لیں، اور بقیہ 6 قائدین بھی مصر ہیں کہ وہ اسی کابینہ کو منظور کیے ہوئے ہیں۔